Good morning, smart learners. How are you, beta? Fine? Excellent. Beta, one positive thought in the morning can change your whole day. So, we must pray to God for the positive thought. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. Now, beta, open lesson 9, fractions of your book. Beta, in our previous video, we did exercise 9.1, question 3, given on page number 109. We also did exercise 9.2, question 1 and 2, given on page number 110 and 111. And solve part question 1 and 2, given on page number 114. In today's video, we will do exercise 9.3, given on page number 113. Solve part question 3, take a challenge, snapshot, given on page number 115. Beta, before starting our lesson, we will do maths lab activity. Beta, these are 18 sketch pens. First of all, I will find out 1/3 of these 18 sketch pens. 1/3 of 18 sketch pens. अब 1/3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 18 को डिवाइड करेंगे 3 से. अब बेटा मुझे बताइए 3 के टेबल में 18 कहां पर आता है? 6 पर. Excellent. So 1/3 of 18 is 6. These are 6 sketch pens, means 1/3 of 18. Now I will find out 2/3 of 18. 2/3 of 18 को फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं 1/3 of 18 देखूंगी. 18 को 3 से डिवाइड करूंगी. अब आपने बेटे 18 को 3 से ऊपर डिवाइड किया था ना. 18 divided by 3 is equal to 6. Now I will multiply 2 with 6. 2 6 is 12. So 2/3 of 18 is 12. This is your 2/3. This is your 1/3, 6, and 2/3 is 6 plus 6 is 12. Okay? Beta, first of all we will do fractions as part of a collection. These are 12 flowers. I have to do half of this 12 flowers. Means I have to divide these flowers into 2 parts. Half of 12.
हाफ ऑफ 12 मीन्स आई हैव टू डिवाइड 12 विथ 2. मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगी. अब आपको पता है ना 2 के टेबल में 12 कहां पर आता है? 2 6 12 होता है ना. तो हर पार्ट में कितने फ्लावर्स आ जाएंगे? 6 फ्लावर्स आ जाएंगे. ईच पार्ट हैज 6 flowers. Now I will divide this collection into 1/3. 1/3 of a collection means 1/3 of 12. 12 को मैं 3 से डिवाइड करूंगी. इसको मेरे को 3 पार्ट्स बनाने हैं ना, तो 12 को 3 से डिवाइड करूंगी. अब आपको मालूम है 3 के टेबल में 12 कहां पर आते हैं? बताइए मुझे 3 के टेबल में 12 कहां पर आते हैं? 4 पर. एक्सीलेंट. 3 4 12 होता है ना. तो इसके कितने पार्ट्स बन गए? 3 पार्ट्स. और हर पार्ट में कितने फ्लावर्स हैं? 4 फ्लावर्स. ईच पार्ट हैज 4 flowers. Now beta, I will do 1/4 of a collection. Means 12 का मैं 1/4 करूंगी. 1/4 of 12 means I will divide 12 with 4. अब बेटा बताइए 4 के टेबल में 12 कहां पर आता है? 4 3 12 होता है ना. शाबाश. तो कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स. और हर पार्ट में कितने फ्लावर्स हैं? 3 फ्लावर्स. क्योंकि 4 के टेबल में 12 3 पर आता है. ईच पार्ट हैज 3 flowers. Now beta, open page number 113 of your book. We will do exercise 9.3. This is your first question. Fill in the blanks by dividing each collection. आपको fill in the blanks करने हैं each collection को डिवाइड करके. फर्स्ट क्या है? हाफ द टोटल ऑफ ऑल द फिश. सारी फिश का आपको क्या करना है? हाफ करना है. मीन्स आप टोटल फिश 8 है ना बेटे. 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे. अब आपको पता है ना 2 के टेबल में 8 4 पर आता है. सो द आंसर विल बी 4. सेकेंड पार्ट इज 1/4 ऑफ ऑल द फिश. आपको इन सारी फिश का 1/4 लेना है. मीन्स आपको 8 को डिवाइड करना है 4 से. 4 के टेबल में 8 2 पर आता है ना. सो द आंसर विल बी 2. नाउ हियर आर बॉल्स. यहां पर कितनी बॉल्स हैं बेटे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Here are 24 balls. And you have to half the total of all the balls. Means you will divide 24 with 2. 2 के टेबल में 24 बेटे 12 पर आता है ना. So the answer will be 12. Second part is 1/3 of all the balls. अब आपको 1/3 फाइंड आउट करना है बॉल्स का. तो आप क्या करेंगे? 24 को 3 से डिवाइड करेंगे. तो आपका आंसर आ जाएगा 8. थर्ड पार्ट इज 1/4 ऑफ ऑल द बॉल्स. अब आपको 1/4 फाइंड आउट करना है. 1/4 फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं बेटे? आप 24 को 4 से डिवाइड करेंगे. योर आंसर विल बी 6. क्योंकि 4 के टेबल में 24 6 पर आता है ना. ओके. नाउ बेटे दिस इज योर सी पार्ट. सी पार्ट में फ्लावर्स कितने हैं? 6. फर्स्ट पार्ट इज
half the total of all the flowers. Half the total of all the flower means 6 total flowers हैं. आपको उसे 2 से डिवाइड करना है. So the answer will be 3 क्योंकि 3 2s are 6 होता है. Second part is now बेटा second part is 2/3 of all the flowers. आपको सारी फ्लावर्स का 2/3 निकालना है. What will you do in this? आप 2/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टोटल फ्लावर्स 6 है ना. 2/3 मल्टीप्लाई 6. अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट 1/3 ऑफ 6. 6 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. और फिर 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2s is 4. So your answer will be 4. Now beta, this is your D part given on page number 113. D part is आप बेटे पहले टोटल कैंडल्स काउंट करेंगे. और फर्स्ट पार्ट क्या है डी का? हाफ द टोटल ऑफ ऑल द कैंडल्स. आप टोटल कैंडल्स काउंट करके उसे आप हाफ में क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं ना. 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. सेकंड पार्ट में 1/4 ऑफ ऑल द कैंडल्स. आप टोटल कैंडल्स काउंट करके उसको 4 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा. नाउ दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. कलर द फ्लावर्स अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन. आपको फ्लावर्स कलर करने हैं फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग. ए पार्ट इज 1/2 ऑफ ऑल द फ्लावर्स. टोटल फ्लावर्स आप पहले काउंट करेंगे. ये टोटल फ्लावर्स 6 है ना. अब 6 का आपको हाफ करना है. मीन 6 को आप 2 से डिवाइड करेंगे. 2 के टेबल में 6 बेटे 3 पर आता है ना, तो आप 3 फ्लावर्स को कलर कर देंगे. इन बी पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट 1/3 ऑफ ऑल द फ्लावर्स. आपको 1/3 फाइंड आउट करना है सारी फ्लावर्स का. अब बेटा टोटल फ्लावर्स कितने हैं इसमें? टोटल फ्लावर्स आर 6. आप 6 को 3 से डिवाइड करेंगे ना. ठीक है, 3 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है? 2 पर. तो 2 फ्लावर्स कलर कर देंगे तो आपके पास 1/3 ऑफ ऑल द फ्लावर्स आ जाएगा. ओके, नाउ बेटा ओपन पेज नंबर 115. This is your third question. What fraction of the collection is 1/3 of the cakes? आपको इस कलेक्शन का 1/3 फाइंड आउट करना है. ये केक्स है ना. पहले आप टोटल केक्स काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These are 9 cakes. 9 का 1/3 क्या होगा बेटे? 9 को आप 3 से डिवाइड करेंगे. 3 के टेबल में 9 3 पर आता है ना. सो द आंसर विल बी 3. इन बी पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट 4 9s ऑफ द केक्स. आपको 4 9s फाइंड आउट करना है इन केक्स का. ये आप कैसे करेंगे? आप 4/9 ऑफ 9 करेंगे. टोटल केक्स 9 है ना, तो 4th 9th मीन्स 4/9. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई and you will multiply with the total cakes means you will multiply with 9. अब 9 के टेबल में 9 बेटे 1 पर आता है ना, तो ये 1 हो जाएगा. और 4 1s क्या होता है बेटे? 4 1s is 4. So your answer is 4. अब बेटे ये पेंसिल्स काउंट करके आपको उसका 1/2 फाइंड आउट करना है. अब आपको आ गया ना करना 1/2 फाइंड आउट करना, तो आप ये अपने आप करेंगे. डी पार्ट में 2/3 ऑफ द पेंसिल्स लेना है आपको. ये भी आप अपने आप करेंगे. नाउ बेटा दिस इज टेक अ चैलेंज. कलर एज डायरेक्टेड. जैसे आपको कहा गया वैसे आपको कलर करने हैं.
A part is half of the geese blue. आपको इन geese का half part blue कलर करना है. अब पहले आप total geese काउंट करेंगे ना. Total geese are बेटे 16. अब 16 का हाफ कितना होगा बेटा? 16 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा. आपको 8 geese को ब्लू कलर करना है. नाउ बी पार्ट इज 1/4 ऑफ द geese ग्रीन. आपको 1/4 geese ग्रीन कलर करनी है. अब टोटल geese बेटे 16 है ना. 16 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 4 से. 16 डिवाइडेड बाय 4. 4 के टेबल में 16 4 पर आता है ना. आप 4 geese को कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन कलर. अब इसमें ज्यादा geese कौन सी हैं? 8 या 4? 8 ज्यादा है ना, तो 1/2 ज्यादा हुआ ना 1/4 से. विच फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स मोर geese? You will tick on 1/2. Beta, this is snapshot question given on page number 150. Open page 115 बेटे. Question is complete the box. आपको ये बेटे बॉक्स कंप्लीट करना है. अब ए पार्ट में क्या गिवन है? ए पार्ट में न्यूमरेटर गिवन है. न्यूमरेटर इज 5 and your denominator is 6. And you have to find out the fraction. आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी आती है ना, तो इससे फ्रैक्शन क्या बनेगी? 5 न्यूमरेटर है और 6 डिनोमिनेटर है. फ्रैक्शन विल बी 5/6. Fraction will be 5/6. Now your fraction is 2/3. अब फ्रैक्शन दी हुई है, आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है. बताइए आप, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर? न्यूमरेटर इज 2 एंड डिनोमिनेटर इज बेटे 3. शाबाश. नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 3/4. You have to find out numerator and denominator. In this part, your numerator is 3. Excellent. And your denominator is beटे 4. Awesome. Beta, I think today's topics are clear to you. Thank you. Have a nice day.